ہم نے منگوایا اس میں اگر کوئی چینجز کی ضرورت تھی وہ ڈرافٹ کر لیں تاکہ لاسٹ میں پھر وہ ہم انشاءاللہ ریزولوشن. جی ٹھیک ہے جی, گڈ ہو گیا جی. آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. جی ٹھیک ہے جی, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین, کل پوری قوم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منائے گی, اور اسی سلسلے میں آج ایوان بالا کا یہ ایک خصوصی سیشن ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہاں سے آج یک زبان ہو کر ایک یکجہتی کا پیغام اپنے کشمیری بھائیوں کو جائے گا. جناب چیئرمین, پاکستان اور کشمیر کا رشتہ جسم و جان کا رشتہ ہے. یہ قائد کی زبان میں شاہ رخ کا رشتہ ہے, یہ انسانیت کا رشتہ ہے, یہ محبت کا رشتہ ہے, اور یہ ایک بھائی چارے کا رشتہ ہے. اور کشمیر کا مسئلہ ہمارا موقف ہے کہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے جس کا حل سوائے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حق کے خود ارادیت کے اختیار کے بغیر ممکن نہیں ہے. جناب چیئرمین, کشمیریوں کے ساتھ جو جبر کی تاریخ ہے وہ نہ صرف بہت طویل ہے, وہ بہت دردناک بھی ہے, مگر وہ بہت سبق آموز بھی ہے. پہلے دن سے ایکسیشن کے بعد جہاں پہلے بھارتی فوجی نے کشمیر میں قدم رکھا, اس دن سے لے کر آج تک کشمیر میں بھارتی فوج کا قبضہ جاری ہے. 9 لاکھ سے زیادہ فوج, جس کا نتیجہ کہ آج کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے. مگر اس جبر کے باوجود کشمیری حریت پسندوں نے, کشمیری نوجوانوں نے, ماؤں بہنوں نے, بچوں نے, سب نے قربانیاں دے کر آج تک آزادی کا علم بلند رکھا ہوا ہے. جناب چیئرمین, یہ صرف جبر کی تاریخ نہیں, وعدہ خلافی کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے جو ہر موقع پر کشمیریوں کے ساتھ ہوتی رہی. اور اس کا آغاز ایکسیشن ڈاکومنٹ سائن ہونے کے ساتھ ہوا. جناب چیئرمین, ایکسیشن ڈاکومنٹ کا جو سائن ہونا ہے اس کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس پر بے شمار شکوک و شبہات ہے. میں اس ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا, مگر ایک اہم نقطے کی طرف ضرور توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. وہ یہ کہ اس وقت جیسا بھی ہوا, جو ایکسیشن ہوا, اس کے 2 اہم نکات تھے. ایک وہ کنڈیشنل تھا اور دوسرا وہ ریسٹرکٹیو تھا. وہ کنڈیشنل اس طرح تھا کہ صرف 3 محکمے, فارن افیئرز, ڈیفنس اور کمیونیکیشن, وہ ٹرانسفر ہوئے تھے ہندوستان کو, اور باقی تمام تر محکمے, تمام تر پاور اسٹیٹ کے پاس رہی تھی. اور 370 آرٹیکل کے تحت اس کو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکشن دی گئی تھی. اور یہ وعدہ تھا کہ کشمیریوں کی شناخت کو برقرار رکھا جائے گا. اور دوسری طرف یہ ایکسیشن ریسٹرکٹیو کنڈیشنل بھی تھی, یعنی کہ اسی وقت وعدہ کیا گیا تھا. ماؤنٹ بیٹن کے خطوط موجود ہیں, اور یہ اس وقت ایکسیشن کا ایک کلیہ تھا کہ ریفرینڈم یا پلیبیسائٹ ہوگا تاکہ جب کوئی اسٹیٹ ایکسیڈ کرتی ہے تو اس کے عوام کی رائے لی جائے.
इसी कुलिये के तहत सरहद में भी रेफरेंडम हुआ था और लोगों ने पाकिस्तान के साथ जाने के लिए अपना हक इस्तेमाल किया था। वहां से जो वादा खिलाफी शुरू हुई वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों तक वो जारी रही। जनाब चेयरमैन, ये तो एक मुख्तसर तारीखी पसमंजर था, मगर होता क्या है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आने के बाद हिंदुत्व की फिलॉसफी के प्रचार के बाद कश्मीर में एक नई सूरत हाल जन्म लेती है। 5 अगस्त 2019 एक स्याह दिन करार पाता है, जबकि खुद हिंदुस्तान के अपने किए गए हुए वादों के बरखिलाफ 370 और 35A को आइन से यूनिलैटरली और इल्लीगली हदफ किया जाता है। और उसके बाद हिंदुत्व फिलॉसफी के तहत इस्राएली तर्ज पर वहां पर गैर कश्मीरियों को बसाने की एक मज़मूम कोशिश शुरू होती है, जिसका नतीजा कि आज तकरीबन 4.2 मिलियन इल्लीगल डोमिसाइल इशू किए जा चुके हैं। और न सिर्फ ये, दूसरी तरफ नाजी तर्ज के मजालिम ढाए जाते हैं। डिटेंशंस, कत्ल, रेप और अजियत के वो दास्तानें कि इंसानियत शर्मा जाती है। पूरी कश्मीरी क़यादत उसको पाबंद सलासल किया गया। किस किस का नाम लूं? आसिया अंद्राबी से लेकर यासीन मलिक तक, और तो और सैयद अली शाह गिलानी, उनके जस्ते खाकी से भी भारतीय सूरमा खौफ खाते रहे, और जो शर्मनाक और काबिल मजम्मत हरकत उन्होंने की, उनके जस्ते खाकी के हवाले से मैं समझता हूं कि वो इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। जनाब चेयरमैन, इन हालात में पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, सब ने मिलकर वाशगाफ अल्फाज में अपने कश्मीरी भाइयों को यकजहती का पैगाम दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में खड़े होकर मोदी को जो पैगाम दिया वो सबके सामने है, और ये कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनकर दिखाऊंगा, और उन्होंने कश्मीर का सफीर बनकर दिखाया। जनाब चेयरमैन, मुजफ्फराबाद के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होता है। वहां पर खड़े होकर कश्मीर का मुकदमा पूरी शद्दमत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने पेश किया। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में हर फोरम पर इस मसले को उठाया। OIC का भी जो हालिया इजलास, गो के वो स्पेशल सेशन था अफगानिस्तान के हवाले से, उसमें भी कश्मीर के मसले को उजागर किया गया। इसी तरह पाकिस्तान के वजीर खारजा, उन्होंने अपनी सफारती हिकमत अमली के तहत कश्मीर के मुकदमे को, कश्मीर के केस को दुनिया के सामने पेश किया, और पाकिस्तान का जो डोजियर पेश किया गया वो हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है, और उसने दुनिया में हिंदुस्तान के चेहरे को सबके सामने अयां किया। इस तमाम तर हिकमत अमली का नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज हुआ और भारत आइसोलेशन का शिकार हुआ। भारत जो चैंपियन बनता था सेकुलरिज्म का,
जमहूरियत का, इंसानी हकूक का उसका मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मरतबा कश्मीर के इशू पर डेलिब्रेशन हुई, और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के इश्यूज पर डेलिब्रेशन होती हैं तो इसका मतलब है कि भारत का वो मौकफ कि ये उसका अंदरूनी मामला है, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, उनके बयानात सबके सामने हैं जिसमें उन्होंने कश्मीरियों और पाकिस्तान के मौकफ की तायद की। वो खुद यहां भी तशरीफ लेकर आए और यहां पर भी उन्होंने अपना मौकफ वाज़ेह तौर पर सामने रखा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए और पाकिस्तान के मौकफ और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हमायत की। जनाब चेयरमैन, आलमी रहनुमाओं ने भी पाकिस्तान के मौकफ को सराहा, चाहे वो टर्की हो, आज़रबाईजान हो, मलेशिया हो, जर्मनी हो, स्वीडन हो। सब आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान के मौकफ और कश्मीरियों के काज के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। जनाब चेयरमैन, ना सिर्फ ये हम आज इस ऐवान में बैठे हैं, दुनिया की जमहूरियत पसंद जो मुल्क हैं उनकी पार्लियामान में भी कश्मीरियों की आवाज़ सुनाई दी, चाहे वो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट हो या वो यूके पार्लियामेंट हो या वो यूरोपीय ममालिक की पार्लियामेंट्स हों। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया, जिससे अमूमन ये शिकायत रहती है कि वो भारत नवाज है, वो भी न रह सका और उसने भी भारत के मजालिम पर आवाज़ उठाई, कलम उठाया और भारत का असली चेहरा सबके सामने आया। इंसानी हकूक की तंजीमें, यूनाइटेड नेशन कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स, उनकी 2 रिपोर्ट्स हैं 2018-2019 की, जिसमें तफसील के साथ उन तमाम वाक़यात का जिक्र है। और हमारा ये मुतालबा है कि अब वक्त है कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहाँ पर भेजा जाए और उसकी तीसरी रिपोर्ट जो वो भी सामने आए। हाल ही में रसल ट्रिब्यूनल ऑन वार क्राइम्स, उसने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें भारत को नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दिया गया है। वहां पर इल्लीगल सेटलमेंट्स को उजागर किया गया है। और जनाब चेयरमैन, इसके साथ साथ खुद भारत में भी भारतीय नाकामी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने इस बात का इतराफ किया कि मोदी की खारजा पॉलिसी नाकाम हुई और हालत यह है कि यौम जमहूरिया के लिए उन्हें कोई मेहमान भी दस्तयाब नहीं था। उसने इस तरफ भी इशारा किया कि इस नाकाम पॉलिसियों और पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान और चीन वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान और चीन दोनों का ताल्लुक जहां दीगर हवालों से है, वहां पर मसला कश्मीर और भारत के साथ सरहदी तनाज़ों के हवाले से भी है। और भारत की हालत यह है कि वो चाइना की तरफ रुख करता है तो उधर ठुकाई होती है, वो पाकिस्तान की तरफ रुख करता है तो यहां पर कान से पकड़कर चाय पिलाकर हजीमत से दो चार कर कर उनके सुरमाओं को वापस घर का रास्ता दिखाया जाता है। जनाब चेयरमैन, मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि जुल्म की रात तवील तो हो सकती है,
मगर उसके बाद आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहता है। मैं मोदी को बताना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि तुम हुर्रियत पसंदों को पाबंद सलासल तो कर सकते हो, मगर उनके जज्बा हुर्रियत को मुक़य्यद नहीं कर सकते, उनकी सोच पर पहरे नहीं बिठा सकते, उनकी फिक्र को कैद नहीं कर सकते। ये आफाकी है और ये आपको हर नगर नजर आएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम पैलेट गनों के जरिए नौजवानों की बसारत तो छीन सकते हो, मगर उनका आजादी के लिए नूर बसीरत नहीं छीन सकते। और इस नूर बसीरत से आजादी की जो किरणें तुलू होंगी वो तुम्हारी सोच से ज्यादा हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि शहीदों का लहू जहां जहां टपका वहीं वहीं से आजादी के सोते फूटते हैं। और मैं ये बावर कराना चाहता हूं कि जहां पर एक हुर्रियत पसंद का अगर लाशा गिरता है तो वहां से कई नौजवान बुरहान वानी खड़े होकर तुम्हारे सामने सीना सुपर होंगे। जनाब चेयरमैन, मैं अक़वाम आलम से भी मुतालबा करता हूं कि वक्त है कि फैसला करें कि मफादात की सियासत करनी है कि असूलों की सियासत करनी है। हम मुतालबा करते हैं कि भारत पर जोर दिया जाए, भारत से मुतालबा किया जाए कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को फिलफौर वापस ले। वहां पर इंसानी हकूक की पामाली को रोकने के लिए आलमी दुनिया अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान ने डोजियर में जिन जिन लोगों की निशानदही की है उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 4.2 मिलियन जो इलीगल डोमिसाइल्स इशू किए गए हैं उनको फिलफौर मनसूख किया जाए और कश्मीरियों के हक खुदरादियत को यकीनी बनाया जाए और मोदी को जंगी जराइम पर अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।